Bismillahirrahmanirrahim. Topic for today is cardiovascular system, angina, myocardial infarction and hypertension. We will discuss these three issues of the cardiovascular system in today's lecture. Hypertension is a global burden of the disease. Round the globe, 1 billion people are affected with hypertension. Leading causes of deaths round the world, for example in 2016 were 15 million deaths due to ischemic heart disease and stroke. And both of these, ischemic heart disease and stroke, are the complications of hypertension. Hypertension, increased blood pressure, doubles the risk of cardiovascular disease, doubles the risk of myocardial infarction and angina pectoris and coronary artery disease. Antihypertensive therapy should be taken by each and every patient suffering from hypertension, high blood pressure. It clearly reduces the risk of cardiovascular disease and renal disease and other complications of hypertension, for example left ventricular hypertrophy and heart failure. A large number of population, a large number of patients suffering from hypertension, they are either untreated or inadequately treated. Hypertension is of two types. Number one, essential hypertension. 90 to 95% of the cases are essential hypertension in which there is no specific cause is there. There are certain risk factors, environmental, genetic, fetal factors, humoral factors and insulin resistance and metabolic syndrome. These risk factors are there, but there is no specific cause causing the increased blood pressure. Essential hypertension, 90 to 95% of the cases. Then secondary hypertension is caused by some of the specific disease or abnormality leading to sodium retention or peripheral vasoconstriction. Secondary hypertension will be due to some cause. In essential hypertension, what are the important risk factors? Obesity, alcohol intake, sodium intake, stress and insulin resistance. Obese people have high blood pressure, have more blood pressure readings as compared to thin people. Alcohol intake, however small amounts, seem to be beneficial. Sodium intake directly proportional to the level of blood pressure of the body. Stress increases blood pressure because stress releases the cortisol hormone, which is a stress hormone. Cortisol increases the sympathetic activity and causes vasoconstriction, fight and flight response. So cortisol released in stress causes hypertension. Then insulin resistance and diabetes mellitus. Relationship between diabetes mellitus and hypertension has long been established because diabetes mellitus is a microvascular disease. इसमें छोटी blood vessels का structure खराब होता है. Pathology and abnormality of small blood vessels, obviously leading to high blood pressure inside these vasculature, causing high blood pressure. So relationship between diabetes and hypertension. एक patient जिसको diabetes है उसको ज़्यादा high risk है तो उसको blood pressure भी high, hypertension भी रहना शुरू हो जाएगा sooner or later, especially in untreated cases. Now what are the secondary causes of hypertension? What is secondary hypertension की क्या reasons हो सकती हैं? Renal disease. किडनी का क्या काम है कि वो excess fluid को, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाले. एक ऐसा किडनी जो डिजीज़्ड है, जिसको पेरेनकाइमल डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन किडनी का, उसमें किडनी श्रिंक होकर इतना छोटा सा हो जाता है तो वो किडनी कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है. तो ये बीमार किडनी, डिजीज़्ड किडनी जो है, एबनॉर्मल किडनी जो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल बीमारी से, वो एक्सेस सोडियम और वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता. तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी हाइपरटेंशन, हाइपरवोलीमिया, सोडियम रिटेंशन, फ्लूइड ओवरलोड. फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन. देन सर्टन ड्रग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ब्लड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब भी किसी पेशेंट को दी जाती हैं उसका ब्लड प्रेशर पहले चेक किया जाता है. जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको नहीं दी जाती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उनमें. इसके अलावा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हाई ब्लड प्रेशर करते हैं. एनसेड्स जो हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें पोटेशियम होती है, सोडियम होती है. प्रोलॉन्ग्ड यूज़ इनका ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है. सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स
आपको पता है कि जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी, कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर है जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज़ करेगा, एज अ रिजल्ट हाइपरटेंशन या इंक्रीज ब्लड प्रेशर करेगा. अनदर कॉज इज कोआक्टेशन ऑफ आयोटा विच इज़ अ डेवलपमेंटल एनॉमली ऑफ आयोटा. आयोटा जो है वो इतने बड़े डायमीटर का हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और अचानक कोआक्टेशन में क्या होता है कि देयर इज़ अ सडन डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ एओर्टा, देयर इज़ अ सडन कॉन्स्ट्रिक्शन. तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एओर्टा ने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है इस रेजिस्टेंस की वजह से. सो इस कॉन्स्ट्रिक्शन से ऊपर ब्लड प्रेशर रीडिंग ज़्यादा होती हैं और इसके नीचे ब्लड प्रेशर रीडिंग्स कम होती हैं. सो यहाँ से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर ब्रेकियल आर्टरीज वगैरह में होगा. रेडियो फेमरल डिले, रेडियल आर्टरीज इस कॉन्स्ट्रिक्शन से पहले निकल रही हैं और फेमरल आर्टरी तो इसकी कॉन्टिनेशन से बननी है एब्डोमिनल एओर्टा से, यानी इस कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद निकल रही है. तो देयर विल बी रेडियो फेमरल डिले. जब हम एक ही टाइम पे रेडियल पल्स और फेमरल पल्स को लेंगे, फील करेंगे, तो रेडियल पल्स हमें पहले फील होगी और फेमरल पल्स हमें बाद में फील होगी. इसको कहते हैं रेडियो femoral delay, which is a characteristic clinical feature of the coarctation of aorta, developmental abnormality of the aorta. So it will also be responsible for high blood pressure. Then बहुत सारी endocrine hormonal mechanism, endocrine diseases हैं which may be the cause of secondary hypertension. Number 1, pheochromocytoma is a vascular tumor of the adrenal gland. adrenal medulla के अंदर ये ट्यूमर बनता है और ये क्या करता है, एक्सेस कैटिकोलामीन्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है. एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं. कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेसिव कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल सिम्पैथोमाइमेटिक है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर रेज करता है. प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल इसको कौन सिंड्रोम भी कहते हैं. एल्डोस्टेरॉन ने क्या करना है, एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम रिटेंशन करनी है, वाटर रिटेंशन करनी है, हाइपरटेंशन करनी है. हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में देयर इज इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर इन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म. Increased levels of PTH hormone in the blood will releases calcium from the bone. Increased levels of calcium in the blood will result in high blood pressure. Acromegaly, increased amounts of growth hormone in adults. ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशंस है एडल्ट्स में. इसमें मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं हाई ब्लड प्रेशर जो करते हैं. फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो जाता है एंड देयर आर सम अदर सर्टन मैकेनिज्म्स एज वेल. प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म, आपको पता है हाइपोथायरॉइडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस यानी हाइपरथायरॉइडिज्म दोनों हाई ब्लड प्रेशर करते हैं. 3% ऑफ द पेशेंट विद हाइपोथायरॉइडिज्म आर हाइपरटेंसिव एज वेल बिकॉज decreased levels of thyroid hormone interfere with the lipid metabolism of the body, resulting into increased blood pressures. and thyrotoxicosis में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो उसमें थायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करता है. सो इट विल रिजल्ट इनटू द ऑल दीज एंडोक्राइन डिजीजेज विल रिजल्ट इनटू द हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. हेयर आर सम नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रीडिंग्स. ऑप्टिमल का क्या मतलब होता है, बेहतरीन, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, आइडियल. सो ऑप्टिमल रीडिंग बीपी की क्या होनी चाहिए, लेस देन 120/80. फिर नॉर्मल में क्या आता है 120 to 129/80 to 84. हाई नॉर्मल हम किसको कहेंगे, बट नॉट हाइपरटेंशन. हाई नॉर्मल क्या है 130 to 139, 85 to 89. जो ब्लड प्रेशर रीडिंग 140 एंड अबव है सिस्टोलिक या 90 एंड अबव है डायस्टोलिक, दैट इज़ हाइपरटेंशन. फिर उसमें ग्रेड 1 है माइल्ड हाइपरटेंशन 140 to 159, 90 to 99. ग्रेड 2 है 160 to 179, 100 to 109. फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 180/110, ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 सिस्टोलिक, 110 डायस्टोलिक, दिस इज़ ग्रेड 3 सीवियर हाइपरटेंशन. उसके बाद कुछ केसेस होते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा 90 से कम है, लेकिन सिस्टोलिक है अगर वो 140 to 149 है, ग्रेड 1 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, और ग्रेटर देन 160 है तो ग्रेड 2 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है. सो दीज नॉर्मल रीडिंग्स शुड बी नोन टू अस. हाउ ब्लड प्रेशर की फॉर्मुलेशन क्या है, ब्लड प्रेशर किन चीज़ों से मिलके बनता है. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, के एक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल जो है वो कितना ब्लड पंप करता है, कितने ml, वो उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट. एंड ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस.
पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। सो दीज रिलेशनशिप शुड बी नोन टू अस। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, इन सब चीज़ों का क्या रोल है बीपी मेंटेनेंस में और इन केस हाइपरटेंशन में। जब भी किडनी को ब्लड सप्लाई कम जाएगी, इस्कीमिया होगा किडनी को, देयर विल बी डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ रेनिन हार्मोन, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजिन इनटू एंजियोटेंसिन 1, ये काम होगा लिवर में। उसके बाद एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, ये काम होगा लंग्स में। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है अपने रिसेप्टर्स पे जाके काम करेगा, एल्डोस्टेरॉन बनाएगा फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। और ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करके, अगर हाइपोटेंशन है तो बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ रेज करेगा। और ऑब्वियसली अगर किडनी को फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम जा रही है, रेनिन निकलेगा और ये सारा कैस्केड एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, तो देयर विल बी इंक्रीज ब्लड प्रेशर। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एल्डोस्टेरॉन इज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। Vasoconstrictor properties of angiotensin 2. Angiotensin 2 is a vasoconstrictor while aldosterone has got sodium retaining properties. इन सब चीज़ों से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये चीज़ें नॉर्मल हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रहेगा। ये तब एक्ट करेंगी जब देयर इज़ हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर किसी वजह से डिक्रीज होगा तो ये चीज़ें उसको नॉर्मलाइज करेंगी ब्लड प्रेशर को। बट ऑब्वियसली इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एंड पेरेन्काइमल डिजीज ऑफ द किडनी ये चीज़ें अगर निकलती हैं तो दे विल लीड टू हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द वास्कुलर रेडियस। बड़ी वेसल है, डायलेटेड वेसल है, उसमें बीपी कम होगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड छोटे डायमीटर की वेसल है, उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। सो वो चीज़ें जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं वो ब्लड प्रेशर को रेज करेंगी, जो वेजो डायलेटेशन करती हैं वो ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करेंगी। एक अच्छी आर्टरी जो होती है नॉर्मल, जो बीमार आर्टरी नहीं है, जिसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी और कंप्लायंस बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई एथेरोमाज नहीं होते, वो रिजिड नहीं होती। लेकिन जब ये सारी चीज़ें एक ब्लड वेसल में नहीं हों तो ऑब्वियसली उसमें ब्लड प्रेशर फिर रेज करेगा। अच्छी इलास्टिक कंप्लायंट नॉन रिजिड सॉफ्ट स्मूथ ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें अगर थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा भी आ जाए फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में, तो वो उसको एकोमोडेट करती हैं, इलास्टिक होती हैं और उसको एकोमोडेट कर लेती हैं इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम को। लेकिन जो आर्टरीज रिजिड है, जिनकी इलास्टिसिटी नहीं है, ब्लड प्रेशर उनमें ज़्यादा होगा, वो इंक्रीज ब्लड सप्लाई को एकोमोडेट, इंक्रीज ब्लड फ्लो को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगी और वो हाइपरटेंशन उसमें ऑब्वियस हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट होंगे हाइपरटेंशन की वजह से? ब्लड वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोमास बनेंगे, फैट डिपॉजिट्स, एनोरिज्म्स बनेंगे, फोकल डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल एक जगह से ऐसे बिल्कुल डायलेट कर गई है, वहाँ से फिर बाद में रप्चर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एओर्टिक एनोरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, इसकी वजह से बनता है हाइपरटेंशन की वजह से। बेरी एनोरिज्म इन द सबरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन ऑफ द स्कल, वहाँ पे अगर बेरी एनोरिज्म का रप्चर हो जाए तो सबरेक्नोइड हेमरेज होता है, वो भी हाइपरटेंशन की वजह से होता है। किडनी में हाइपरटेंशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस करती है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, जो एंडोथीलियम एक थिन लेयर है सेल्स की, एंडोथीलियल जो सेल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके ऊपर हाई ब्लड प्रेशर के मुज़िर असरात होते हैं, उनका डैमेज होता है, उनमें गैप्स पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर इसकी वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नंबर 1 कॉज है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। हार्ट को ख़राब करेंगे ब्लड प्रेशर। एक आर्टरीज़ में हाइपरटेंशन है, आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर हाई है। हाई ब्लड प्रेशर वाले ब्लड वेसल्स में पंप करने के लिए ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इवेंचुअली देयर विल बी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी। कब तक ये इंक्रीज्ड वर्कलोड हार्ट बर्दाश्त करेगा? इवेंचुअली देयर विल बी कार्डियक डायलिटेशन, कार्डियक फेलियर, उसके जो फिर इफेक्ट्स आएंगे। ब्रेन में दोनों तरह से स्ट्रोक कर सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक भी और इन्फाक्शन भी, सीजर्स। सो ब्रेन के ऊपर हाइपरटेंशन का स्ट्रोक क्या होता है? फालिज,
ब्लड सप्लाई टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन ऑक्लूडेड, स्टॉप हो जाएगी ब्लड सप्लाई। तो या तो वहाँ हेमरेज हो जाएगा, सीपेज ऑफ ब्लड आउट ऑफ द ब्लड वेसल इनटू अ सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन, हेमरेजिक स्ट्रोक, और या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। एक जो सर्टेन एरिया ब्रेन का है जहाँ की ब्लड सप्लाई आर्टरी बंद हो गई है, वहाँ कोई ब्लड नहीं जा रहा, तो उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, वो एरिया ब्रेन का डेड हो जाएगा। फालिज का अटैक या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, थोड़ी देर के लिए ब्लड वेसल ऑक्लूड हुई लेकिन फिर रिकैनलाइजेशन हो गई कुदरत के मैकेनिज़म्स की तरफ से। आई के ऊपर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। ग्रेड 1, 2, 3, 4 रेटिनोपैथी करती है हाइपरटेंशन, ब्लाइंडनेस कर सकती है, रेटिनल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस कर सकती है हाई ब्लड प्रेशर रिजल्टिंग इनटू ब्लाइंडनेस। तो हाइपरटेंशन के साथ जब पेशेंट आता है, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन के साथ या मॉडरेट टू सीवियर के साथ, तो ये सारे ऑर्गन्स को हमने एग्जामिन करना है, देखना है कि उनमें ये चीज़ें तो नहीं हाइपरटेंशन ने कर दी। आई का एग्जामिनेशन लाजमी है, फंडोस्कोपी करवानी है पेशेंट की, ये देखने के लिए कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 रेटिनोपैथी, रेटिनल चेंजेस तो नहीं आए हुए। तो ये इन सब ऑर्गन्स को देखना ज़रूरी है जब एक पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ हमारे पास आता है। ये एक नॉर्मल आर्टरी है, ये एथरोमा है आर्टरी के अंदर बना हुआ, एथरोस्क्लेरोसिस से अफेक्टेड आर्टरी है। तो एथरोमा की वजह से डायमीटर कम हो गया, ब्लड सप्लाई कम जा रही है। अब अगर ये हार्ट को सप्लाई कर रही है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाएगी, इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस। ये नॉर्मल ब्लड वेसल। आप क्लियरली यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल विद एथरोमा फॉर्मेशन। और हाइपरटेंशन से अफेक्टेड जो आर्टरीज़ हैं वो टॉर्चुअस हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है जी। उनमें अगर कैनलाइजेशन फॉर एग्जांपल कार्डियक कैथेटराइजेशन करनी तो वो भी मुश्किल है, ठीक है जी। तो ये अफेक्ट्स होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स के ऊपर हाइपरटेंशन के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपरटेंशन क्या क्या कर सकती है? स्ट्रोक, फालिज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के एक एरिया जो है ब्रेन का, या तो वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा कि एथरोमा बनने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्सीपिटल लोब में या पैराइटल लोब में या फ्रंटल लोब में किसी एक जगह पे एरिया जो है एक, वो उसको जो ब्लड सप्लाई है वो इन्फेक्शन हो जाएगा उस एरिया को, कोई ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू एथरोमा इनसाइड द आर्टरी सप्लाइंग द ब्रेन। सबरेक्नॉइड हेमरेज, रप्चर ऑफ बेरी एनोरिज्म, ज़िंदगी की सबसे सीवियर हेडेक होती है इसमें सबरेक्नॉइड हेमरेज में, बहुत सीवियर। हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी क्या है? इंक्रीज्ड हाई ब्लड प्रेशर, सीवियर हाइपरटेंशन प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्पीच, विजन, पारेस्थीजिया, हाथों पैरों में सुइयां चुभना, डिसोरिएंटेशन, बेहोशी की कैफियत, फिट्स, दौरे पड़ना एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी। इट इज़ रेयर बट इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। दिस इज़ अ फॉर एग्जाम्पल एन एन्यूरिज्म, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसका रप्चर हो गया। एन्यूरिज्म क्या था? फोकल डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल। तो ये बेस ऑफ द स्कल में सबरेक्नॉइड स्पेस में ये ब्लीडिंग जमा हो गई और ये सबरेक्नॉइड हेमरेज हो गया, सीवियर हेडेक होगी पेशेंट को, और ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। हार्ट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ एरिथमिया ऑफ द हार्ट, रिदम जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। एट्रियम जो नॉर्मल नहीं है, डायलेटेड एट्रियम है, वो फ्लटर करता है, ऐसे 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 फ्लटर करता है, नॉर्मल उसका साइनस रिदम नहीं रहता। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर सीवियर हाइपरटेंशन में, क्योंकि ज़ाहिर है लेफ्ट वेंट्रिकल हाई ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर वाली आर्टरीज़ में अयोर्टा और सारी बॉडी की जो ब्लड प्रेशर है उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन है, उनका स्ट्रक्चर ख़राब है, डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। उन हाई ब्लड प्रेशर वाली आर्टरीज़ में जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हम जिस मसल को ज़्यादा यूज़ करेंगे उसकी हाइपरट्रफी हो जाएगी और जिस मसल को हम कम यूज़ करेंगे उसकी एट्रफी हो जाएगी। तो हाइपर टेंशन में जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की आहिस्ता आहिस्ता फिर हाइपरट्रफी हो जाएगी, ज़्यादा इस्तेमाल हार्ट के ऊपर बर्डन की वजह से, अनटिल के हम उसको ट्रीटमेंट के ऊपर डालें। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है उसकी वॉल थिक होते होते इवेंचुअली फिर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। कितनी अर्सा हार्ट जो है वो ये ओवर बर्डन बर्दाश्त कर सकता है? ऑब्वियसली वो इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं है। किडनी में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? हाइपरटेंशन, मैंने आपको पहले भी बताया कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का नंबर 1 कॉज है हाइपरटेंशन, और डायबिटीज़ मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर रीनल इंजरी।
रीनल आर्टरीज जो हैं, नाजुक सी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, उनमें एथ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस, वास्कुलर लीजन्स, इस्कीमिक चेंजेस, ठीक है, जिसकी वजह से GFR कम हो जाता है और फाइनली सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन कम हो जाती है। सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन इसका मतलब है होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। और मैंने आपको बताया कि एंडोथीलियल सेल्स की जब इंजरी हो जाएगी, उनमें गैप्स पैदा हो जाएंगे, वहाँ से प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में जाना शुरू हो जाएंगी। 300 मिलीग्राम पर डे तो हर एक बंदे के यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है, बट इसमें ज़्यादा होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो पीछे फिर प्रोटीन्स नहीं रहेंगी, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रह रहा था, तो अब अगर वो नहीं होगा तो एडिमा होगा, ठीक है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर नहीं होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स का लॉस हो जाएगा। प्रोटीन्स ने कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ था, जिसकी वजह से ब्लड और सारा फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर था, अब वो फ्लूइड जो है कंटेंट वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाना शुरू हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। इस वजह से किडनी फेलियर में एडिमा होता है। एंड इफ़ अनट्रीटेड में कॉज प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। सो किडनीज़ में हाइपरटेंशन ये सारे काम करती हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या चीज़ है कि बहुत सवियर ब्लड प्रेशर, जब प्रेजेंटेशन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और ये बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक, माइक्रोवास्कुलर डिजीज़, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स के अंदर ये लीजन्स होते हैं, इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस। और उधर से फंडोस्कोपी कराई तो उसमें ग्रेड 3 या 4 रेटिनोपैथी नज़र आई। रीनल डिसफंक्शन देखा तो प्रोटीन यूरिया इतना ज़्यादा पेशेंट को हो रहा है, रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है पेशेंट। हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी पेशेंट को हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है, और अगर इसको बहुत अच्छा ट्रीट ना किया तो सम मंथ्स में पेशेंट की डेथ हो गई। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इस पिक्चर को कहते हैं कि डायग्नोज होने के बाद प्रोग्रेशन बहुत तेज़ी से हुई, एक्सेलरेटेड प्रोग्रेशन टू सीरियस स्टेजेस एंड फाइनली एंड ऑर्गन डैमेज एंड फेलियर, सो शुड बी ट्रीटेड प्रॉम्प्टली एंड सीरियसली। इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी हाइपरटेंशन के पेशेंट में? सारे पेशेंट में यूरिन एनालिसिस कराना है। जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी डैमेज करता है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, इन्फ्लेमेशन में ब्लड आएगा यूरिन में। प्रोटीन लॉस, ग्लूकोज देखने के लिए कि डायबिटीज़ तो नहीं पेशेंट को। एक ही कंडीशन है प्रेगनेंसी जिसमें कि ग्लाइकोजूरिया इज़ ए नॉर्मल, लेकिन उसमें भी अगर परसिस्टेंट हो तो देख लेना चाहिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी की अपनी डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी का अपना ब्लड प्रेशर है, वो तो नहीं हो रही, प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ तो नहीं हो रही, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस उसको कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। लेकिन आम पेशेंट, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में, मर्दों में, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में ग्लाइकोजूरिया नहीं होना चाहिए। अगर है तो देखें कि डायबिटीज़ तो नहीं है। ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रेटिनिन किडनी फंक्शन को देखने के लिए, किडनी डैमेज को असेस करने के लिए। ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज़ मेलाइटिस को देखने के लिए कि साथ में वो तो नहीं है। लिपिड प्रोफाइल, ताकि लिपिड लोअरिंग ड्रग्स दी जा सकें अगर कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है। HDL कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये ज़्यादा होना चाहिए। 12 लीड ECG, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ को असेस करने के लिए। चेस्ट एक्सरे पे क्या नज़र आएगा? कार्डियोमेगाली, बड़ा हुआ हार्ट फेलियर के साइंस, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये एक्सरे पे चीज़ें नज़र आ सकती हैं। एकोकार्डियोग्राम टू डिटेक्ट एंड क्वान्टिफाई लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना? इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एंड डायस्टोलिक फेज़ में जब हार्ट पूरी तरह डायलेट कर चुका हुआ है, बिल्कुल आखिरी स्टेज है, डायलिटेशन पूरी तरह हो चुकी है टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द पेरिफ्री, ठीक है जी। उस कंडीशन में एंड डायस्टोलिक स्टेज में फॉर एग्जांपल अगर 100 ml ब्लड है वेंट्रिकल्स में, तो इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये है कि 55 to 70 ml जो है वो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आगे पुश हो जाना चाहिए। अगर तो इजेक्शन फ्रैक्शन शुड बी 50 to 70 ml या उससे अबव नॉर्मल है। 55 to 70 ml, 55 to 70% ब्लड जो है वो आगे पंप हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा ब्लड पीछे रह रहा है तो इसका मतलब है इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन से हम पता करते हैं कि हार्ट फेलियर कितने लेवल का है। रीनल एंजियोग्राफी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को देखने के लिए, जहाँ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगा, रीनल इस्कीमिया होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करके हाई ब्लड प्रेशर करेगा। यूरिनरी कैटिकोलामीन्स, फियोक्रोमोसाइटोमा को देखने के लिए, यूरिनरी कॉर्टिसोल एंड डेक्सामेथासोन, कुशिंग सिंड्रोम को देखने के लिए, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड एल्डोस्टेरोन
कौन सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म तो कॉज नहीं है हाइपरटेंशन का। ये सारी क्या है, सेकेंडरी कॉजेज़ को देखने के लिए अगर यंग पेशेंट फॉर एग्जांपल 20 इयर्स का एडल्ट आता है तो उसमें तो रिस्क फैक्टर्स एसेंशियल हाइपरटेंशन के अलावा आपके जहन में अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन आपके जहन में आनी चाहिए। यंग पेशेंट जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रेजेंट करते हैं तो सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशंस भी करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई सेकेंडरी कॉज, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ तो नहीं जो हाइपरटेंशन कर रही है, ख़ास तौर पे यंग पेशेंट्स में। मैनेजमेंट कैसे करनी, इनिशियली देयर शुड बी कंप्लीट असेसमेंट विद रिपीटेड बीपी मेजरमेंट्स। अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है या अगर मॉडरेट भी है तो उसमें पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, डायरेक्टली पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल मेजर्स पे नहीं डाल देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर सीवियर ब्लड प्रेशर है, एंड ऑर्गन डैमेज है, कॉम्प्लिकेशंस है, फिर तो कोई सवाल नहीं, फ़ौरन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स पर डालें। बट अगर माइल्ड सा ब्लड प्रेशर है, हाई नॉर्मल है या माइल्ड है, माइल्ड हाइपरटेंशन है तो लाइफस्टाइल चेंजेस शुड बी एडवाइज। टारगेट हमारा क्या है, 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक एंड 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट, डायबिटीज़, रीनल इम्पेयरमेंट, सीवियस डिजीज़ वालों में ये टारगेट नहीं है, उसमें हमारा टारगेट है 130/80, उसमें और लोअर रखने की ज़रूरत होती है ब्लड प्रेशर को। तो ये हमारे टारगेट्स हैं। माइल्ड ब्लड प्रेशर में पहले लाइफस्टाइल चेंजेस बताने हैं, पहले 6 महीने के लिए वो क्या हैं, बॉडी वेट को मेंटेन करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, डेली इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, डाइट अपनी में फ़ैट रिड्यूस करें, ख़ास तौर पे सैचुरेटेड फैट, सोडियम का कंटेंट कम करें, अल्कोहल अब्यूज़ कम करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो है वो यूज़ उनको ज़्यादा करें, का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, इंक्रीज ऑयली फिश इनटेक। सो दीज आर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड मेजर्स विच शुड बी फर्स्ट। ये ट्राई करनी चाहिए माइल्ड हाइपरटेंशन जिनमें एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है, उनमें पहले ये। और अगर ये फेल हो जाए, वैसे तो ये हर पेशेंट में करनी है आपने, सीवियर वालों को भी ये एडवाइस देनी है, लेकिन माइल्ड वालों में पहले सिर्फ यही ट्राई करनी है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से पहले। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन टू कमेंस स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी ओनली आफ्टर अ केयरफुल पीरियड ऑफ असेसमेंट विद लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर अप टू एटलीस्ट 6 months अनलेस इट्स नॉट हैविंग एंड ऑर्गन डैमेज और अदर हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन जिनमें नहीं है, उनमें हमने लाइफस्टाइल चेंजेस बताने हैं। क्योंकि पेशेंट के साथ डिटेल डिस्कशन अबाउट द एम ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, प्लान, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट शुड बी क्लियरली डिस्कस विद द पेशेंट बिकॉज पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट रेगुलरली मेडिकेशन ले, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पेशेंट काउंसलिंग एंड केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन एंड डिटेल डिस्कशन विद द पेशेंट इज़ मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है। ये जनाब कुछ मेडिकेशंस हैं जो ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती हैं। 55 ईयर से कम का पेशेंट है और ब्लैक पेशेंट नहीं है, ब्लैक ओरिजिन का नहीं है, क्योंकि उनमें शुरू से ही थोड़ी एक्सटेंसिव थेरेपी की जाती है। तो यंगर पेशेंट, यंग पेशेंट्स हैं, उनमें आपने ए फॉर एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सी मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डी मीन्स डायूरेटिक्स। स्टेप 1 में हम इन पेशेंट्स में ये देंगे और यंगर पेशेंट्स में एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन। एस इनहिबिटर्स का साइड इफेक्ट है कफ, सीवियर इंट्रैक्टेबल कफ बहुत सारे पेशेंट्स को डेवलप हो जाती है। सो उनमें हम एस इनहिबिटर्स में क्या आती है, कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लाइसिनोप्रिल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिनको ये सूट नहीं करती, उनको कफ डेवलप हो जाती है, उनको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल लोसार्टान, कैंडीसार्टान। स्टेप 2 में हम कॉम्बिनेशन थेरेपी, अगर ये इफेक्टिव नहीं है इन पेशेंट्स में तो A+C कर दें, और इनमें ये इफेक्टिव नहीं है तो A+D यानी एक कॉम्बिनेशन थेरेपी शुरू कर दें। स्टेप 3 में मल्टीपल ड्रग्स दे सकते हैं आप। स्टेप 4 में फिर आप अल्फा बीटा ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं। आपकी फैमिली में बहुत सारे पेशेंट ब्लॉकियम लेते होंगे 100 मिलीग्राम, जिसमें कि बीटा ब्लॉकर है, टिनॉर्मिन टैबलेट, एटिनोलॉल है, उसमें बीटा ब्लॉकर है दोनों में। कंसीडर सीकिंग स्पेशलिस्ट एडवाइस। सो दीज आर द स्टेप वाइज मैनेजमेंट। सबसे पहले ये ट्राई करना है आपने, इस पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ये ट्राई कर लें या ये कर लें। इसमें ब्लड प्रेशर रीडिंग्स फिर भी हाई आ रही हैं, ये ट्राई करें, फिर भी हाई आ रही हैं, लेकिन एम इज़ टू मेंटेन एंड नॉर्मल जो टारगेट लेवल है हमारा, कि जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उनमें 140/85, और जिसमें कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज है, डायबिटीज़ है पेशेंट को, उसमें 130/80 का टारगेट हमने अचीव करना है। प्रोग्नोसिस डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फीचर्स। लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर जब डायग्नोसिस हुआ उस वक्त अगर माइल्ड है तो अच्छा प्रोग्नोसिस है, मॉडरेट या सीवियर ब्लड प्रेशर है, बुरा प्रोग्नोसिस है। एज एट प्रेजेंटेशन, कम एज पे ही हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, बुरा प्रोग्नोसिस है। प्रेजेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन
changes retinal damage, renal damage, cardiac damage, vascular damage, coexisting risk factors of the cardiovascular disease, for example साथ में hyperlipidemia, diabetes, smoking, obesity, male sex और सारे risk factors हैं, बुरा prognosis है. एज एट प्रेजेंटेशन, अर्ली एज में प्रेजेंट किया ग्रेटर रिस्क है. सेवरल स्टडीज हैव कन्फर्म्ड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इवन फॉर माइल्ड हाइपरटेंशन will reduce the risk not only of stroke but the coronary artery disease, myocardial infarction, MI. So this was all about the hypertension for the course code 313.